Welcome back to the channel of ChemPacific. In this video, I'm going to discuss with you the d-orbital splitting of two more geometries. They're the trigonal prism and the square antiprism. I have already discussed the d-orbital splitting of 4 other geometries in my previous video. Do check it out. Go to the playlist of ChemPacific and search the coordination compounds. Over there, you'll be getting all the videos. Now let's get started. Now see students, द फर्स्ट जो है हमारा वो है ट्राइगोनल प्रिज्म. सो ट्राइगोनल प्रिज्म जो है वो उसका ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा हमें स्टडी कर लेना चाहिए. एंड दैट इज यू सी दैट अगर एक ट्राइंगल कंसिडर करते हो और कॉर्नर्स में फिर जो वर्टिसेस है वहाँ पे आपके डिसाइड करते हैं लिगैंड्स. ओके, नाउ if you connect the edges with imaginary lines, you will definitely get the geometry of trigonal prism. In the middle, you have the metal M. ठीक है? In the middle, you have the metal M, which gets bonded with the ligand. I hope the geometry is clear to all of you. So I have already done this over here. So see, corners में जो vertices है वहाँ पे the ligands are residing, and middle में जो है that is your metal. Clear? So this is the orientation of the ligands and metal in space, and now let us understand the d-orbital splitting in this geometry. Now I have already drawn this, and this is the theoretical value. हम उसे ही explain कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है. The highest energy जो है वो है dxz and dyz, middle में है dz square, and the most stabilized orbitals are dx square minus y square and dxy. Before I proceed, there is some certain important information that I would like to inform you. देखो students, यहाँ पे जो 3 d orbitals है जो barycenter, so this is your barycenter, right? यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल्स है ये बैरीसेंटर से जितना डिस्टेबलाइज्ड है, जितना इसका टोटल ओवरऑल एनर्जी हो जाता है, एनर्जेटिकली ये जितना डिस्टेबलाइज्ड और हाई होता है बैरीसेंटर से, ये 2 ऑर्बिटल उतना ही स्टेबलाइज्ड होते हैं और उतना ही नीचे होते हैं बैरीसेंटर से. एंड वन मोर ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो देयर, एंड दैट इज अगर आप देखेंगे जो बैरीसेंटर से ऊपर होते हैं those are actually denoted by the positive sign of the energy, और जो barycenter से नीचे होते हैं that is always denoted by the negative sign of energy. So in inorganic chemistry the signs mainly depicts the energy. Okay, अगर वो stabilized है, अगर वो barycenter से नीचे है the energy is going to be negative, तो and अगर वो barycenter से ऊपर है the energy is definitely going to be positive. Now see students, जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया है द फर्स्ट जो हाईएस्ट जो ऑर्बिटल है, हाईएस्ट एनर्जेटिकली जो हाईएस्ट पोजीशन में है वो dxz एंड dyz. अगर आप इस ज्योमेट्री को देखते हो और तो फिर आप समझ जाएंगे दैट ये ऑर्बिटल अगर मैं इसे dxz डिफाइन करती हूँ तो यू सी अगर मैं इस ऑर्बिटल को dxz डिफाइन करती हूँ, यू विल सी दैट द लोब्स जो यहाँ पे है द लोब्स आर डायरेक्टली पॉइंटिंग द लिगैंड्स, है ना. यू कैन सी दिस, द लोब्स आर डायरेक्टली पॉइंटिंग द लिगैंड्स. ये भी अगर आप देखते हो यहाँ पर भी देखो द लोब्स आर एक्चुअली डायरेक्टली पॉइंटिंग द लिगैंड्स. ठीक है, ये भी जो है लोब, this is also directly pointing the ligand, and henceforth they are experiencing enough repulsion, the highest repulsion actually. ठीक है, so that is why the energy of the dxz is enough high. Now what about the energy of the dyz? देखो ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन में
का जो है ये 2D में रिप्रेजेंट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल आप देखो अगर ये आपका XY प्लेन है, सो दिस इज योर DXZ प्लेन है, दिस इज योर DXZ ऑर्बिटल, DYZ इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पे एक लोब होगा, यहाँ पे एक लोब होगा, in this orbital and this orbital. So you can easily see that this, if this is your DYZ orbital, then this orbital is actually pointing this ligand and this ligand. समझ में आ गया? So ये है आपका DYZ. So these are the two orbitals which are actually directly pointing the ligands, directly getting pointed towards the direction of the ligand, and henceforth they are experiencing maximum repulsion. That is why यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं that DXZ and DYZ दोनों का ही same story है, ठीक है? So DXZ and DYZ, they are actually pointing along the ligands, therefore they are in the number one position and are possessing the highest energy. Now let us discuss about the dz square orbital. So if you consider this to be the dz square, in the case of the dz square, you can clearly, it is visible to us, it is not pointing any ligands directly. It is not at all pointing any ligands directly. लेकिन this is enough close, this is enough to the ligands. Why? Because यहाँ पे जो आपका, आप अगर इसे देखते हो, this is a triangle, right? And the area of the triangle हमेशा काफी कम होता है। तो ये जो है d orbital, dz square orbital, ये even though it is not directly pointing the ligands, still it is enough close to the three ligands up and the three ligands down. And since the area of this triangle is always very less, so area of a triangle is very less. That is why you can say that the dz square orbital is in close proximity with the three ligands up and the three ligands down. Even though d along the dz square, यहाँ पे कोई भी along the dz square ligand का approach नहीं है, लेकिन जो भी ligand distributed हो रहा है वो तीन ligand dz square के काफी close है, because the area of this triangle is very small. That is why dz square orbital is experiencing enough repulsion and is getting energetically high. That is why you can definitely say second position में हो जाता है आपका dz square orbital. This is in the second position. I hope this is clear to you. Let's recapitulate once again. तो in this case, जो पहले वाला केस था dxz and dyz, वहाँ पे both the d orbitals, dxz and dyz, they were directly pointing the ligands. यहाँ पे अगर आप ligand को numbering करते हो, ये देखो ligand number 1, 2, 3 and 4, they are getting directly pointing towards the dxz orbitals, और उसके ही yz plane में जो belong करते हैं वो है dyz orbital. That is also pointing directly towards the ligands, and that is why you can say that the two orbitals, they experiencing same kind of repulsion, and therefore they are becoming degenerate, and henceforth what is happening, they are energetically highest. So ये हमने, that is why मैंने dxz and dyz को highest एनर्जी लेवल पे रखा. उसके बाद dz स्क्वायर, इवन दो dz स्क्वायर कोई भी लिगैंड से डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, फिर भी dz स्क्वायर जो पोजीशन में
ओरिएंटेड है, उसके जो ऊपर ये प्लेन में जो तीन लिगैंड्स है, they are very much closer to the dz square, even though always remember there is no direct interaction of the ligand and the dz, क्योंकि along the z axis कोई भी ligand का approach in this geometry नहीं हो रहा है, but still the area of this triangle is very less. That is why this three ligands up and these three ligands down, they are enough close to the dz square, and henceforth और the energetically dz square काफी high हो जाते हैं. तो अभी हमने dz square को क्या रखा है, हमने second position में रखा है. अभी हम जो करेंगे वो है last but not the least, that is the d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई. तो हमने ऑलरेडी देखा है जो डी ऑर्बिटल जितना डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव लिगैंड से, उसका एनर्जी उतना हाई होता है. इवन दो डी जेड स्क्वायर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन डी जेड स्क्वायर का जो ओरिएंटेशन इन स्पेस इन दैट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे तीन लिगैंड अप एंड तीन लिगैंड डाउन जो है, उन तीनों का डिस्टेंस काफी कम था, इसलिए वो काफी एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे थे. इन दिस केस नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, जहां पे रिसाइड करते हैं दो ऑर्बिटल, वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई. Even though यहाँ पे भी the same story है, there is no direct approach of the ligand, but at the same time ये plane में you can clearly see that यहाँ पे तीन ligand up down and तीन ligand up of this plane है. This is equidistant from the 6 ligands, and obviously even though there is no direct approach of the ligand, but in this plane where dx square minus y square and dxy orbitals are lying, they are actually equidistant from the 6 ligands, 3 down and 3 up. लेकिन इन दोनों में डिस्टेंस काफी ज्यादा है. दैट इज वाई ये रिपल्शन उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई दे आर एनफ स्टेबिलाइज्ड एंड दे आर द मोस्ट stabilized d orbitals. So therefore, in the case of the trigonal planar, we see the highest energy they occupied by dxz and dyz, because they are pointing the ligands directly, their lobes are pointing the ligands directly, and then you have the dz square. So dz square का क्या story है, that even though dz square is not pointing the ligands directly, still what is happening, still the ऊपर जो ट्राइंगल है वहां पे लिगैंड इतना क्लोज हो जाते हैं dz स्क्वायर के, दैट इज व्हाई dz स्क्वायर इज एक्सपीरियंसिंग एनफ रिपल्शन, एंड दैट इज व्हाई सेकंड पोजीशन में बिलोंग कर रहे dz स्क्वायर. एंड लास्ट पोजीशन जहां पे डी एक्स वाई प्लेन में, जहां पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं, वहां पर भी कोई डायरेक्ट लिगैंड का अप्रोच नहीं है. यहाँ पे जो रिपल्शन हो रहा है ये तीन नीचे और तीन ऊपर का लिगैंड से हो रहा है, और ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर, सो दे आर एनफ स्टेबिलाइज. सो दिस इज योर नंबर 1 स्प्लिटिंग, दिस इज योर नंबर 2 स्प्लिटिंग, एंड दिस इज योर नंबर 3 स्प्लिटिंग. I hope this is clear to all of you, and always remember ये जो बैडी सेंटर से ये तीन ऑर्बिटल जितना ही डिस्टेबलाइज्ड होता है, जितना ही एनर्जेटिकली हाई होता है फ्रॉम द बैडी सेक्टर, उतना ही एनर्जेटिकली लो हो जाता है ये डी ऑर्बिटल, टू मेंटेन द ओवरऑल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो ये टोटल एनर्जेटिकली जितना बैडी सेंटर से ऊपर होगा, ये दो ऑर्बिटल एनर्जेटिकली उतना ही बैडी सेंटर से नीचे होगा, उतना ही स्टेबलाइज्ड होगा. अगर वो स्टेबलाइज्ड होता है दैट इज डिनोटेड बाय द नेगेटिव चार्ज, और अगर वो डिस्टेबलाइज्ड होता है and it is above the balance center, that is denoted by the positive charge. So this is the story of the d orbital splitting of the trigonal prism. Clear? Now students see, यहाँ पे एक क्वेश्चन आए थे. This is CSIR-NET दिसंबर 2016. अगर ये पार्ट बी में क्वेश्चन आ चुके हैं तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट 4 मार्क्स का इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसलिए ये दो जियोमेट्री जो है दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दोनों बहुत अच्छे से करो क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए. ओके, सो नाउ
इन द ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक लिगैंड, जो कि ये ट्राइगोनल प्रिज्म के बारे में हमने किया है, दे आस्किंग द मोस्ट स्टेबिलाइज्ड डी ऑर्बिटल। स्टेबिलाइज मतलब क्या है? स्टेबिलाइज मतलब जिसका एनर्जी सबसे कम है, मतलब लीस्ट एनर्जी। द मोस्ट स्टेबिलाइज्ड डी ऑर्बिटल इज, क्या है? हमने अभी अभी इसे ही सॉल्व किया है। इट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं दिया, एंड द आंसर इज डी एक्स वाई, दिस. So I hope this is clear to all of you. Now let us move on to the next one. This is the square antiprism. तो square antiprism बनते कैसे हैं पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद ये ज्योमेट्री थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग स्टडी करेंगे. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर ये एक स्क्वायर जो है, मेरा रफ स्केच है, कंसिडर दिस एज अ स्क्वायर इटसेल्फ. सो अगर ये स्क्वायर है, देन व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर है इट विल एक्चुअली, अगर इसे आप 45 डिग्री एंगल में रोटेट करते हो, इट टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस. ना ऊपर और नीचे दोनों ही अगर स्क्वायर हो जाते हैं और अगर आप उसे कॉर्नर्स कनेक्ट करो, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यूब. बट हमें क्यूब नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर एंटीप्रिज्म चाहिए. तो ऊपर का अगर आपका स्क्वायर है, उसे आप 45 डिग्री में अगर रोटेट करते हो, ठीक है, 45 डिग्री में आप रोटेट करते हो, ये ऐसे बन जाते हैं. मतलब द लिगेंड्स आर नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर. अगर ये ऐसा है नीचे का, तो इसे अगर आप 45 डिग्री टर्न करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे बन जाएंगे. ठीक है. सो मिडिल में आपका कौन है? मिडिल में आपका है मेटल. ठीक है, मिडिल में आपका है मेटल. नाउ अगर आप अभी आप देखो, सारे जो कॉर्नर्स में, सारे कॉर्नर्स में कौन है? सारे कॉर्नर्स में द लिगैंड्स आर रिसाइडिंग. Now connect them with the imaginary line. I hope अभी आपको स्क्वायर एंटीप्रिज्म ज्योमेट्री के बारे में क्लियर पिक्चर सिनेरियो अच्छे से पता चल गया. सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर एंटीप्रिज्म. वहां पे ऊपर जो है वो है स्क्वायर है. अगर वही स्क्वायर को आप 45 डिग्री रोटेट कर देते हो एंड देन यू ज्वाइन देम, इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वायर एंटीप्रिज्म. सो सी, दीज आर द लिगैंड्स up, and when you rotate it with 45 degree angle of a square, and these are the ligands down. तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है, और मिडल में you have the metal. So this is the explanation of the geometry of square antiprism. Now let us study the d orbital splitting in this square antiprism geometry. So I have already drawn this d orbital splitting pattern, and see students, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स मैंने दिया है वो है हाईएस्ट एनर्जी में डी एक्स एंड डी वाई जेड, वो हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड पोजीशन में है, ये अभी चेंज हो गया है, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड मोस्ट स्टेबिलाइज्ड यहाँ पे डी जेड स्क्वायर है. आई होप यू रिमेंबर दैट ट्राइगोनल प्रिज्म में क्या था, वहाँ पे मोस्ट स्टेबिलाइज्ड जो था वहाँ पे कौन था, वहाँ पे था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई एंड डी एक्स वाई, और डी जेड स्क्वायर सेकेंड पोजिशन में. लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो गया, क्यों? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. एंड अगेन द सेम स्टोरी, ये तीनों ऑर्बिटल बैरिसेंटर से जितना स्टेबिलाइज्ड होता है, ये दो ऑर्बिटल बैरिसेंटर से उतना ही destabilized होगा in order to maintain the redistribution of energy of the overall complex. Now see students, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक d orbital ड्रॉ किया है. Let us assume this to be dxz. dyz का भी सेम स्टोरी है. अगर आप इसे रोटेट करते हो 90 डिग्री, you will be getting the same story of dyz. If I am explaining the
द स्टोरी ऑफ द डी एग्जेड देन डेफिनेटली डी वाई जेड का भी सेम स्टोरी होगा। अगर उसे जस्ट सिमिलरली अगर आप उसे 190 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको डी वाई जेड का ऑर्बिटल का भी ओरिएंटेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स सिमिलर कंडीशन में मिलेंगे। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो तो ये अगर मेटल है, इसका जो डी वाई जेड लोब्स है ऑफ दिस डी ऑर्बिटल जो लोब्स है, यू कैन इजीली सी क्लियरली इट इज विजिबल दैट दे आर डायरेक्टली पॉइंटिंग द लिगैंड्स। ठीक है, तो जो डायरेक्ट पॉइंट कर रहे हैं लिगैंड को, ठीक है, तो ऊपर ऊपर ये दो, नीचे दो, ठीक है, ऊपर दो एंड नीचे दो। अगर ये थोड़ा सा एक्चुअली ये डायग्राम अगर होता तो इसके साथ है, ठीक है, ये ऊपर दो और ये जो लोब है ये इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। सो ये लोग इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये लोग इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये इसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। एंड डी वाई जेड के भी सेम स्टोरी, इफ यू रोटेट इट बाय 90 डिग्री यू विल बी फाइंडिंग द अदर डी वाई जेड ऑर्बिटल, द सेम स्टोरी द सेम ओरिएंटेशन इन स्पेस इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दैट इज वाई सिंस इट इज पॉइंटिंग डायरेक्टली अलोंग द लिगैंड, दैट इज वाई इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। सो दैट इज वाई यू कैन डेफिनेटली से दैट डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड दे लाई इन द पोजीशन नंबर 1। नाउ पोजीशन नंबर जो लास्ट पोजीशन है इन दिस केस ये डी जेड स्क्वायर का है। सो दिस इज इन पोजीशन नंबर 3। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट एंड देन आई विल मूव ऑन टू द अदर टू। यहाँ पे देखो, वहां पे डी जेड स्क्वायर एनर्जेटिकली काफी हाई था एज कॉम्पेयर टू द स्क्वायर एंटीप्रिज्म। व्हाई इज इट सो? बिकॉज स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप कोई भी स्क्वायर को देखते हो यू कैन इजीली सी दैट ये जो स्क्वायर है दिस इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स। सो द obviously roughly you can say that a square area of a square is nearly equal to twice the area of a triangle. So उस triangle में 3 ligand था, even if it is having the twice area still it is consisting of 4 ligand. That is why यहाँ पे अभी जो dz square orbital है ये middle में आ चुका है, ठीक है। If this is your z axis, ठीक है, if this is your z axis, तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द लिगैंड नहीं है इस ऑर्बिटल में एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द लिगैंड एंड द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज नाउ has increased because now the area of the square is more. That is why the ligands are now moving far apart from each other from the dz square orbital as well. So dz square अभी काफी stable position में है और वो ligand से काफी दूर भी है, so it is experiencing least repulsion. So that is why in this case dz square is enough stabilized, is more stabilized orbital. So this is the difference between ट्राइगोनल प्रिज्म एंड स्क्वायर एंटीप्रिज्म। ये ट्राइगोनल प्रिज्म में जो हो रहा था वहां पे अब मैं फिर से आप लोगों को दिखाती हूँ, वहां पे जो डी जेड स्क्वायर था वो काफी क्लोज था क्योंकि ये जो एरिया विच हैज बीन मेड बाय द 3 लिगैंड्स, ये दैट इज अ ट्राइंगल का एरिया काफी कम होता है और इसकी वजह से जो लिगैंड्स है ये काफी क्लोज आ जाते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से, इसलिए डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करते हैं काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। बट व्हेनेवर the area turns out to be a square and moreover triangle भी था, एरिया कम भी था, 3 लिगैंड था, अभी ये एरिया डबल हो गया और एक ही लिगैंड एक्स्ट्रा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप देखो now the ligands are have moved a bit higher distance as compared to the earlier one। और यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एरिया इतना बढ़ गया है स्क्वायर का that dz square is in a very stable and comfortable position। That is why
in this case, the dz square orbital is most stabilized orbital because it is experiencing least repulsion. Least repulsion. So I hope this is clear to all of you. Least. क्लियर? तो इसीलिए दोनों का डिफरेंस ये है कि इसमें अभी स्क्वायर बन गया और ये काफी dz स्क्वायर ऑर्बिटल से दूर चले गए। बाकी इसका भी सेम है। तो वहां पे देखो, वहां पे इक्वी डिस्टेंस था, वहां पे जो dx स्क्वायर xy प्लेन जो था dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dxy इन इज इट वाज एक्चुअली एक्सपीरियंस रिपल्शन फ्रॉम 6 लिगेंड्स। जितना डिस्टेंस में था यहाँ पे अभी उतना ही डिस्टेंस डिफरेंस है। ठीक है, so this one in this case, this one is your xy plane which is consisting of, this one in this case is your xy plane and it is consisting of two orbitals. Point number 1, dx square minus y square and dxy. These two orbitals are now experiencing repulsion from 8 ligands, 2 लिगैंड और इंक्रीज हो गया है। नाउ इट इज एक्सेप्ट, तो वहां पर भी इन दोनों का जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था बिटवीन द लिगैंड एंड द xy प्लेन, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है। तो वहां पे 3 + 3 6 लिगैंड से रिपल्शन हो रहा था, यहाँ पे 4 + 4 8 लिगैंड्स व्हिच इज एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन due to 8 ligands. So now it is experiencing repulsion due to 8 ligands. That is why it is experiencing more repulsion. That is why it is becoming energetically enough higher as compared to the other one. But still, since there is no direct interaction with this, still, so it is below the barycenter, but it is higher in energy as compared to the dz square. So it is in the second position. So I hope this is clear to all of you, the d orbital splitting pattern of the square antiprism as well. These two are very advanced level and very interesting and important. I hope this is clear to you. If you have any kind of doubt, do write in the comment section. I'll definitely reply and make a video on your doubt. So let's end the video over here and thank you for watching our video, and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon if you're new to our channel, and also press the like button. Thank you for watching our video.